Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Student, how are you? Hope you are well. So this is our next lecture, that is lecture 4 from lesson number 13, the chemical chain and the chemical bonds. And in previous lecture we have learned about the chemical reactions, how to write that word equation and how to write the chemical equation of this. We have done some activities regarding that is soda, mixing soda and lemon juice, and we have saw the changes, which types of changes happen, that carbon dioxide is liberated. In next lecture we have learned about the everyday's life chemical changes which we have seen around us, which going inside the body, that is respiration, photosynthesis in plants, and we have seen their reaction, word equation or chemical equation. In today's lecture we will see the man-made chemical changes. Okay, so we know that there are different changes done by man, like burning, है ना, कंबशन ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग जिसको हम बोलते हैं, जलना, लकड़ी जलना, देन पेट्रोल, कोल एक्सेट्रा. So burning or combustion is one of the man-made chemical changes. Then there is another change like cleaning of Shahbat tiles. If you saw then construction of a house, so you will see that there is a tiles प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन. टाइल्स लगाने के प्रोसेस होता है, जो उसको लगाने के बाद उसको क्लीन किया जाता है. सो देर इज़ स्पेशल टाइप ऑफ टाइल्स, दैट इज़ शाहबाद टाइल्स. उसको क्लीनिंग करते हैं तो दैट देर इज़ यूज़ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो दैट टाइल्स react with HCl, and that reaction is going on, that is also man-made reaction. Then there is another reaction happen in the water or hard water. जो hard water होता है, brackish water, खारा पानी, उसमें भी एक reaction होती है with soap and that soda, washing soda और water में एक reaction होती है. So we will, these are the some man-made changes. There are lots of man-made changes, but we will see this because it is in our syllabus, so we have to know about what will happen by this reaction, what we will get, which type of product we will see, or what type of product will form by this reaction. So first reaction of man-made reaction, that is a combustion reaction. Combustion means जलना जिसको हम बोलते हैं, that is reaction of burning, the burning process. So we know there are so many life man-made changes है, chemical changes है. जैसे कि हमने फर्स्ट एक देखा लेमन सोडा वाला जो था चेंजेस, सोडा लेमन वाला, ये भी man-made है, जिसको हम कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं. दैट इज़ एक्चुअली अ man-made chemical change है, जो उसको तैयार किया जाता है, सोडा तैयार होता है तो. So first man-made chemical change is the combustion of fuels. Combustion means the burning, जिसको हम बोलते हैं ना, जलना या burning. अब there are so many things which get burns, like first wood है ना, coal है, petrol है, then cooking gas है, and due to this burning process or due to this product when get burns we get the energy. Okay, and they बर्न, उसको बर्न किया जाता है बिकॉज टू गेट द एनर्जी, एनर्जी लेने के हासिल करने के लिए. एंड द कॉमन सब्सटेंस दैट बर्न इन ऑल दिस फ्यूल इज़ द कार्बन. तो मेन जो रहता है, जो जलता है, दैट इज़ अ कार्बन. एक्चुअली कुछ भी हम वुड हो, कोल हो, कुकिंग गैस हो, दैन पेट्रोल हो, उसमें जो मेन जो प्रोडक्ट होता है विच गेट बर्न्स, दैट इज़ अ कार्बन. ओके, so during this combustion process, carbon combine with oxygen in which is present in the air, and that carbon dioxide get produced or formed, release, है ना. हम जब स्मोक देखते हैं, ब्लैक स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है जब जलाते हैं लकड़ी वगैरह, तो दैट ब्लैक स्मोक जो है, दैट इज़ एक्चुअली अ कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स द प्रोडक्ट of burning is the carbon dioxide. So let's see the common equation of this, means all the burning process, जितने भी burning process है वो सेम रहेंगी और कॉमन रहेंगी, क्योंकि उसमें सब में जो है कार्बन ही बर्न होता है और कार्बन ही जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एंड द प्रोडक्ट्स इज कार्बन डाइऑक्साइड गेट फॉर्म. सो दिस इज द equation or common equation of all the burning process, all the combustion process. Okay, so carbon react with oxygen which is present in the air. This is the word equation, carbon plus oxygen,
देन हेयर यहाँ पर एरो चाहिए, देन कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, दिस इज द केमिकल रिएक्शन, द कार्बन देन ऑक्सीजन एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गेट फॉर्म. नाउ स्टूडेंट, दैट कंबशन ऑफ फ्यूल इज अ फास्ट एंड इरिवर्सिबल केमिकल चेंज. फास्ट रिएक्शन होता है, कुछ भी हम फट से जला लो जल्दी से जलता है, गैस लो, पेट्रोल वगैरह. सो इट इज़ अ फास्ट एंड इरिवर्सिबल. व्हाट इज नाउ इरिवर्सिबल? Irreversible or reversible, there are two types of changes actually, the irreversible or reversible. And what is the difference? Irreversible changes means we cannot convert this carbon dioxide into carbon or oxygen, or we cannot separate the oxygen or carbon from the carbon dioxide. That is impossible. Okay, so that type of reaction is known as the irreversible reaction. Okay, and the reversible reaction is shown by this type of arrow like this. ओके, ऐसे एरो से शो करते हैं. इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है और जो वो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, हम उस प्रोडक्ट को फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डूइंग सम अदर रिएक्शंस. सो दैट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन. और उसमें को जब हम रिवर्सिबल शो करते हैं तो उसको इस तरह के जो है एरो शो करते हैं. सो इरिवर्सिबल, फॉर एग्जांपल लाइक आइस ले लो आप. आइस को इफ़ यू विल बर्न दैट विल मेल्ट, पानी बनेगा, मेल्ट हो जाएगा, है ना. देन आफ्टर दैट गेटिंग अ वाटर फ्रॉम द आइस, वी कैन कन्वर्ट दिस वाटर इनटू आइस, है ना. हम उसको क्या कर सकते हैं, फिर से हम उसको आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय फ्रीजिंग, है ना. एक फ्रीजिंग प्रोसेस हो रहा है, एक जगह बर्निंग का प्रोसेस कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, तो वो वाटर आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर बाद में उसको कंडेंस करके उसको ठंडा करके हम वो पानी को फिर से क्या करें, आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ऐसी भी कुछ रिएक्शंस रहती है जिसमें हम प्रोडक्ट को सेपरेट कर सकते हैं, वो कुछ दूसरी केमिकल रिएक्शन और दूसरे प्रोसेस अप्लाई करके, तो वो क्या होता है, फिर से रिएक्टर में कन्वर्ट हो जाता है. एंड दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ इरिवर्सिबल रिएक्शंस. ओके, अंडरस्टूड. सो दिस इज द कंबशन ऑफ अ fuels. Now our next man-made chemical reaction is cleaning of the Shahbad tiles with dilute hydrochloric acid. I just explain you, if you have seen during the construction or the tile process, जब होता है टाइल्स लगाने का प्रोसेस होता है, सो यू हैव सीन सो मेनी टाइम्स दैट क्लीनिंग होती है उसकी. तो एक्चुअली जो क्लीनिंग हो रही है वो कैसे की जाती है, वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया जाता है. उसके ऊपर जो लेयर्स होती है टाइल्स के ऊपर, उसको हटाया जाता है. दैट आफ्टर दैट क्लीनिंग दैट शाइन, दैट टाइल्स गेट शाइन, बहुत ज़्यादा शाइन करती है. सो द केमिकल कंपोजिशन ऑफ शाहबाद टाइल इज़ मेनली द कैल्शियम कार्बोनेट. तो जो टाइल्स है उसका मेन जो कंपोजिशन है, यानी उसमें सबसे ज़्यादा या सबसे मेन कंपोजिशन क्या रहता है, दैट इज़ द कैल्शियम कार्बोनेट. एंड द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज़ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट. सो मेन जो रहता है उसका कंपोजिशन, दैट इज़ अ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन अ टाइल्स. ओके, सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट क्लीनिंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी नो दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स फॉर्मूला इज HCl. ओके, सो अब HCl और calcium carbonate get react with each other. So when that hydrochloric acid atoms apply on the tiles, that upper layer of the tile react with HCl and 3 products are formed. उसके बाद जो होते हैं 3 products form होते हैं, मीन्स एक रिएक्शन शुरू हो चुका है वहाँ पर, that during that cleaning of the Shahbad tiles. So one of them is calcium chloride. So अब 3 products जो तैयार हो रहे हैं, फर्स्ट इज कैल्शियम क्लोराइड. आई विल राइट इट हियर to understand you well. So, okay, so we know that calcium carbonate is the main composition of the tile, that is CaCO3. Okay, and HCl is applied, that is dilute HCl है वो, ठीक है, उसको हम dilute लिख सकते हैं, dilute hydrochloric acid. Now what will happen, or what the products form, 3 products get formed in that, that is first is the calcium chloride. Okay, first see the reaction here. We will see the what equation is given here, that calcium carbonate, then hydrochloric acid, and after this reaction we will get calcium chloride, carbon dioxide and water. These are the 3 products. Now we will apply some formula or the chemical formula of this, and we will see the reaction. So I have wrote here the calcium
chloride that is present, calcium carbonate that is present on a tiles. ओके, ये टाइल्स में है. एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl है उसको उससे क्लीन किया जा रहा है. देन फर्स्ट प्रोडक्ट वी गेट दैट इज़ अ कैल्शियम क्लोराइड. We know the three products get formed. One of them is calcium chloride. The formula of calcium chloride is CaCl2. Then second product we have seen in that equation, that is carbon dioxide. The formula is carbon dioxide is CO2. Then third product is water, that is H2O. So this is the chemical equation. Okay, chemical equation. Now what, it is not a balanced equation. Okay, how it is, we can see it. See, this calcium is 1 in number, so calcium is 1 in number. Carbonates is also 1 in number. So यानी कि कार्बन देखें तो यहाँ पर कार्बन के नंबर जो 1 2 बराबर हो रहे, 1 2 और एक 3. ओके, HCl यहाँ पर Cl2 हो गया है. बट जो हाइड्रोजन है, आई थिंक इट इज़ नॉट बैलेंस. यहाँ पर H2O है. ठीक है, व्हाट इज़ देयर इज़ H2O. सो H2O, सो हाइड्रोजन नंबर जो है वो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो है वो कम हो रहा है. सो वी कैन बैलेंस इट बाय दिस एडिंग ट्वाइस HCl कर देंगे, उसको हम 2 HCl कर देंगे, तो दैट नाउ इक्वेशन गेट बैलेंस. ओके, so this is the reaction of cleaning the Shahabad tiles. So these three product get forms and which being soluble in water, और जो कैल्शियम क्लोराइड वगैरह जो फॉर्म हो रहे हैं जो वाटर में सोल्यूबल रहते हैं एंड गेट वॉश्ड अवे विथ वाटर. द सेकेंड प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, जो बबल निकलते हैं जब क्लीनिंग करते हैं, इट्स बबल मिक्सड अप इन एयर, सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है. देन थर्ड प्रोडक्ट वी गेट द वाटर विथ जो मिक्सिंग हो रहा है उसका. सो दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ क्लीनिंग ऑफ द शाहबाद टाइल्स. सो understood this much, how that reaction gets happen during that cleaning of these tiles while applying the dilute hydrochloric acid solutions. We get these three products, that is the carbon dioxide, calcium chloride and water. एक्चुअली द कार्बन डाइऑक्साइड जो रहते हैं बबल्स फॉर्म होते हैं, उसमें कुछ गैस रिलीज होती है, वो आवाज़ सुनाई देती है, तो वी अंडरस्टूड, दैट इज़ अंडरस्टेबल. नाउ थर्ड reaction, man-made reaction, chemical reaction is the softening of hard water. What is hard water? जो खारा पानी हम जिसको बोलते हैं brackish water, जो यूज़ में नहीं रहता है, unable to drink. Okay, so that is here we can explain the reaction, which type of reaction will happen when soft करते हैं water को, उसको खारे से थोड़ा कम खारा करने के लिए ना ब्रैकिश वाटर रहता है. सो सम वेल और ट्यूब वेल्स का जो वाटर रहता है दैट इज़ एक्चुअली हार्ड. सो इट इज़ अ ब्रैकिश टू टेस्ट एंड डज नॉट फॉर्म अ लेदर विथ सोप. लेदर मीन्स जब हम खारा पानी और सोडा जो रहता है, यानी कि सोप जो रहता है उसमें एक्चुअली जो सोडा होता है, वॉशिंग सोडा, वो जब मिलाते हैं तो एक लेदर फॉर्म होता है ना, जिसको हम देखते हैं वाइटिश कलर का सोप के साथ मिलाते हैं, तो दैट लेदर जो है वो फॉर्म नहीं होता है ब्रैकिश वाटर के साथ, in brackish water to taste and does not form any lather with the soap. So this is because of hot water contain the chloride and the sulfate salt of calcium. वो गाय की वजह से रहता है क्योंकि जो वाटर रहता है उसमें क्लोराइड रहते हैं, सल्फेट रहता है, सल्फेट सॉल्ट रहता है एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज़ देयर. सो इन डिज़ोल्व्ड स्टेट, जो डिज़ोल्व स्टेट में रहते हैं. ओके, सो टू सॉफ्टन द हार्ड वाटर सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज एडेड टू इट. यानी कि अब उसको सॉफ्ट करने के लिए वॉशिंग सोडा का जो है वो सोल्यूशन ऐड किया जाता है एंड दिस रिजल्ट इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म अ प्रिसिपिटेट. नाउ व्हाट इज़ अ प्रिसिपिटेट हियर? सी इट इज़ रिटन हियर. प्रिसिपिटेट मीन्स एक मतलब इम्प्योर जो है एक सब्सटेंस, जैसे कि कुछ मिलावट वाला जो है. फॉर एग्जांपल जैसे अगर से हमने लाइम जो है ना कि चूना अगर से पानी में मिला लिया तो वो कैसा एक सॉल्यूशन बनता है. इसमें चूना हमको अलग दिखता है, एकदम मिल्की टाइप का थोड़ा सा. उसको हम कैसे बारीक कपड़े से छानते हैं तो दैट वी विल सी दैट जो लाइम है वो ऊपर आ जाएगा और थोड़ा मिल्की वाटर नीचे आ जाता है. तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन गेट फॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड द प्रिसिपिटेट. So that precipitate of insoluble carbonate salt of a calcium and magnesium, वो जो प्रिसिपिटेट रहता है वो काय का रहता है, वो कार्बोनेट सॉल्ट रहता है
इनसोल्यूबल रहते हैं वो पानी में, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का. सो एज द डिजॉल्व सॉल्ट ऑफ अ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम गो आउट इन द फॉर्म ऑफ अ प्रिसिपिटेट ऑफ द कार्बोनेट सॉल्ट, सो द वाटर गेट सॉफ्टन. अब फिर उसको जब आगे उसकी फर्दर रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ये जो प्रिसिपिटेट है कार्बोनेट और वो जो मैग्नीशियम वगैरह प्रेजेंट है वो कैसे हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, गो आउट हो जाते हैं, एकदम क्लीन वाटर हो जाता है और जो वाटर है वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है. सो द रिएक्शन ऑफ दैट is given here. So the word equation is like, see here, the calcium carbonate react with the sodium carbonate, और sodium carbonate को बोला जाता है washing soda. washing soda. Okay, so sodium carbonate is also called as a washing soda. So after the reaction we will get the calcium carbonate and sodium chloride. Okay, NaCl, that is a salt of a कार्बोनेट सॉल्ट हमको मिल रहा है, तो सोडियम क्लोराइड वी विल गेट. सो द केमिकल रिएक्शन इज ऑल्सो गिवन हियर. द CaCl2 इज द कैल्शियम क्लोराइड प्लस Na2CO3 इज द वॉशिंग सोडा और द सोडियम कार्बोनेट, and the product is formed, that is a calcium carbonate, that is CaCO3, and sodium chloride is NaCl, that is a salt actually. So this reaction is also not balanced, so this is a homework for you to balance this equation. Okay, balance this equation, this is homework. And one is another homework for you, so to write word and chemical equation of the chemical change taking place in magnesium salt during the softening of a hard water. Just you have to change the calcium के जगह हमको क्या लेना है, हमको मैग्नीशियम लेना है. सो आपको क्या करना है, एक इक्वेशन लिखनी है, वर्ड इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन फॉर द कैल्शियम chemical change taking place in magnesium salt during the softening of water. So student, in today's lecture we have learned about the man-made chemical changes, जिसमें हमने 3 टाइप्स के देखे हैं. कंबशन यानी कि बर्निंग ऑफ अ फ्यूल्स और वुड एक्सेट्रा. देन सेकेंड थी क्लीनिंग ऑफ अ शाहबाद टाइल्स, वी हैव लर्न द केमिकल इक्वेशन और द word equation. Third one is the softening of a hard water. So these are the some chemicals man-made changes. Okay, and student, you know that we know very well that changes जो हो रहा है chemical changes है और वो मैन मेड चेंजेस है, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि दो रिएक्टेंट जो है ब्रेक्स होते हैं और न्यू सब्सटेंसेस क्या होते हैं, प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं वो फॉर्म होते हैं. सो एक्चुअली जो फॉर्मिंग हो रहा है न्यू केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू होता है, दैट इज़ actually a process. We saw that composition of matter changes during a chemical change and new substances having different properties. जैसे कि अब अगर से हम न्यू सब्सटेंसेस देखते हैं, हाइड्रोजन और जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलाया बर्निंग प्रोसेस में तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिला, दोनों भी डिफरेंट थे. कार्बन और एक हार्ड उसमें था वुड, अगर से एग्जांपल लेते हैं तो एक हार्ड टाइप का वुड था, फिर उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया वाइल बर्निंग, उसको जलाया, तो देन एक कार्बन डाइऑक्साइड है, पूरी हमको गैस फॉर्म में उसका प्रोडक्ट मिला. तो प्रॉपर्टीज गेट चेंज एंड व्हेन दिस हैपन सम केमिकल बॉन्ड इन द रिएक्टेंट ब्रेक्स एंड न्यू सब्सटेंसेस कॉल्ड द प्रोडक्ट और फॉर्म. और ये एक्चुअली क्या होता है कि उसमें जो बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक डाउन होती है और रिएक्टेंट जो ब्रेक डाउन होते हैं और नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं, है ना, प्रोडक्ट गेट फॉर्म्स. सो new chemical bonds get formed during the formation or during the reaction of the new substances. So we will see next topic, that is a chemical bonds. Hope you understood this much. So good luck and Allah Hafiz.